السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، افاکسن سیریز کلاس 7 یونٹ نمبر 3 ریپروڈکشن ان پلانٹس کے آج کے لیکچر میں ہم پلانٹس میں ریپروڈکشن یعنی تولید کے عمل کے مختلف طریقوں کو پڑھیں گے۔ پلانٹس میں دو طرح کی ریپروڈکشن ہوتی ہے، اے سیکشول اور سیکشول ریپروڈکشن۔ اے سیکشول ریپروڈکشن پودوں میں تولید کا وہ طریقہ ہے یا بڑھوتری کا 1 سے 2 ہونے کا وہ طریقہ ہے جس میں دو مختلف پودوں کے گیمیٹس آپس میں نہیں ملتے، یعنی کوئی بھی ویجیٹیٹیو حصہ، سبز حصہ یا غیر تولیدی حصہ آگے بڑھ کر ایک نیا پودا بنا دے تو اس کو اے سیکشول ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ ریڈ اینڈ شیئر۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, if any Muslim plants any plant and a human being or an animal eats of it, he will be rewarded as if he had given that much in charity. صحیح البخاری 6012۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگائے اور اس میں سے کوئی انسان یا جانور کھائے تو اسے ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے صدقہ کیا ہو۔ Have you ever seen a baby animal or a baby plant growing into an adult animal؟ کیا آپ نے کبھی ایک جانور کے چھوٹے بچے کو یا ایک چھوٹے پودے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بڑا مکمل جانور یا پودا بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ What do these tiny creatures come from؟ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جو چھوٹے بیبی پلانٹ یا چھوٹے بیبی اینیملز ہوتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ Each living organism has a few basic characteristics which distinguish it from non-living things۔ ہر ایک زندہ جاندار کے اندر کچھ خاص بنیادی خصوصیات ہیں جو ان کو غیر زندہ چیزوں سے الگ کرتی ہیں۔ کون کون سی خصوصیات ہیں؟ فار ایگزامپل، living things need food, they are able to move, they respire, they grow and they reproduce۔ زندہ جاندار خوراک کھاتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں اور وہ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنے جیسے نئے بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ The most important characteristics of every living being is reproduction as it ensures the continuity of life۔ زندہ جانداروں کی خصوصیات میں سب سے اہم خصوصیت ان کا تولیدی نظام ہے، یعنی اپنے بچے پیدا کرنے کا نظام ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی کی بقا ممکن ہوتی ہے۔ اگر کوئی زندہ جاندار یا پودا اپنے جیسے بچے پیدا نہ کرے تو اس کے ختم ہونے کے بعد اس کی اگلی نسل ممکن نہیں ہے۔ پھر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اسی جیسا جانور یا پودا زمین پر نیا آ جائے۔ Without reproduction, living being would have been diminished from the planet long before۔ اگر یہ تولید کا نظام نہ ہوتا تو جتنے بھی زندہ جاندار ہیں اس دنیا میں وہ بہت ہی عرصہ پہلے اس کرۂ زمین سے ختم ہو چکے ہوتے، یہاں سے ختم ہو چکے ہوتے۔ It is a process by which new offsprings are produced from their parents۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے بڑے والدین اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں۔ All living things include plants and microorganisms are capable of reproduction۔ تمام زندہ جاندار، ان میں پودے، جانور اور تمام خود بینی جاندار بھی شامل ہیں، یہ سب تولید کا عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے جیسے بچے پیدا کرتے ہیں۔ Plant reproduce in different ways۔ پودوں کے اندر تولید کا نظام مختلف طریقوں سے مکمل ہوتا ہے۔ We have already learned that plants grow from seeds which are enclosed in food۔ ہم نے یہ پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ پودے تولید کے لیے بیج بناتے ہیں، پودوں کے اندر بیج بنتے ہیں جو کہ کسی بھی پھل کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان بیجوں سے آگے جا کے پودا تیار ہوتا ہے۔ Spanish Muslim made significant contribution to field of botany and some of them were the greatest botanists of early times۔ اسپین سے تعلق رکھنے والے مسلمان سائنسدانوں نے نباتات یعنی پودوں کی تعلیم کے میدان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ان میں سے کچھ پرانے یا پہلے کے دور میں کے بہت عظیم سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ They classified plant into those that grow from seeds, that grow from cutting and those that grow of their own accord وائلڈ گروتھ۔ انہوں نے پودوں کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے، مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ایک پودے کی قسم وہ ہے جو پودوں کا ایک گروپ وہ ہے جو کہ بیج بناتے ہیں، بیج بنا کر تولید کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ ایک گروپ پودوں کا وہ ہے جن کو آپ کاٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگائیں تو وہ نیا پودا تیار کر لیتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے ہیں جن کے کسی بھی حصے کو، پودے کے کسی بھی حصے کو اگر آپ کاٹیں تو وہ نئے پودے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ The two basic ways by which plants reproduce are given below۔ دو بنیادی اور اہم طریقے جن سے پودوں کے اندر تولید کا عمل مکمل ہوتا ہے نیچے بتائے گئے ہیں۔ یہ دو بنیادی طریقے اے سیکشول اور سیکشول ریپروڈکشن ہے۔ اے سیکشول ریپروڈکشن کیا ہے؟ ہم نے یہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ کسی بھی پودے کا پھول تولیدی حصہ ہے جبکہ پتے، تنا اور جڑیں غیر تولیدی حصے ہیں۔ اے سیکشول ریپروڈکشن وہ طریقہ تولید ہے جس میں کسی بھی پودے کا ریپروڈکٹیو پارٹ یعنی پھول اپنی کسی بھی قسم کا کردار ادا نہیں کرتا، اس میں موجود نر اور مادہ حصے آپس میں نہیں ملتے بلکہ نیا پودا
पुराने पौधे के गैर तौलीदी हिस्से यानी पत्ते, तना या जड़ की किसी भी हिस्से से बन सकता है। गैमीट्स आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। किसी भी पौधे का नर या मादा तौलीदी खुलिया गैमीट कहलाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ प्लांट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एक्सेप्ट सीड्स। किसी भी पौधे का गैर तौलीदी हिस्सा यानी वेजिटेटिव पार्ट नए पौधे में तब्दील हो सकता है, यानी नया पौधा पत्ते से, तने से या जड़ों के किसी भी हिस्से से बन सकता है। इस तरीक़ा तौलीद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज नहीं इस्तेमाल होते या बीज से पौधा तैयार नहीं होता। रूट, स्टेम एंड लीव आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमें ये मालूम है कि जड़ें, तना और पत्ते किसी भी पौधे का गैर तौलीदी यानी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। द रिजल्टिंग इंडिविजुअल विल बी आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट प्लांट। इस नतीजे में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो पौधा तैयार होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह का होता है। जिस तरह का पौधा होगा उसका बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही तैयार होगा। Asexual reproduction is possible because of the fact that almost each cell of the plant is able to regenerate an entire new plant under experimental condition। गैर तौलीदी तरीका तौलीद इस हकीकत की बुनियाद पर मुमकिन है कि किसी भी पौधे के हर एक खुलिये में ये सलाहियत होती है या उसके अंदर वो तमाम अज़ा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एक नया पौधा मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि माहौल में मौजूद तमाम तर हालात मुनासिब यानी वो तमाम कंडीशन जो कि एक सेल से पूरा पौधा तैयार होने के लिए ज़रूरी हैं वो माहौल में मौजूद हों, तो किसी भी पौधे का एक सेल मुकम्मल नए बड़े पौधे में तब्दील हो सकता है। सिंस वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि गैर तौलीदी हिस्से भी किसी भी पौधे के तौलीद में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, यानी नए पौधा बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस तरीक़ा तौलीद को वेजिटेटिव यानी गैर तौलीदी तरीक़ा अफजाइश भी कहा जाता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय सच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज ट्यूबर, बल्ब्स एंड स्टोलन्स। ये तरीक़ा तौलीद मुख्तलिफ पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ तरीके से मुमकिन हो सकता है, जिस तरह ट्यूबर्स की वजह से, बल्ब की मदद से या स्टोलन्स की मदद से। ट्यूबर, बल्ब और स्टोलन्स क्या हैं, इनको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पौधे के गैर तौलीदी हिस्से यानी फूल और बीज वगैरह इस किसी भी पौधे के आगे बढ़ने या तोसी के अमल में हिस्सा नहीं लेते। गैर तौलीदी हिस्से तना, पत्ता और जड़ें किसी भी पौधे की तोसी और बढ़ोतरी के अमल में मदद देती हैं, यानी उनसे नए पौधे तैयार होते हैं। किसी भी पौधे के 3 गैर तौलीदी बुनियादी हिस्सों यानी पौधे के तने, पत्ते और जड़ों में सबसे अहम किरदार तने का है। ज़्यादातर पौधों में नॉन रिप्रोडक्टिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तने ही का इस्तेमाल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से तने की मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे पहले हम बल्ब के बारे में पढ़ते हैं। बल्ब क्या है? कोई ज़मीन में दबा हुआ ऐसा तना जो कि आगे जाके पूरा पौधे में तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पर लहसुन और प्याज वगैरह। ये लहसुन का एक तना है जिससे आगे जाके रूट्स और लीव्स निकलते हैं। बल्ब्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। दीज अंडरग्राउंड स्टेम्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। बल्ब ज़मीन में दबे हुए तने हैं और ये तने आगे जाके एक नए पौधे में तब्दील हो सकते हैं। द ग्रोइंग प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड स्टोर इन द बल्ब। नया तैयार होने वाला पौधा अपनी बढ़ोतरी के लिए इसी तने में मौजूद महफूजशुदा खुराक से अपनी दवाई हासिल करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बल्ब आर ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप, डैफोडिल्स। बल्ब की आम मिसालों में प्याज, लहसुन, ट्यूलिप और डैफोडिल के पौधे शामिल हैं। तने की दूसरी किस्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व है उसे ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर की आम मिसाल एक आलू है यानी पोटैटो। ट्यूबर क्या है? ये असल में एक मोटा और खुराक से भरा हुआ तना है। अनदर फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ ट्यूबर। गैर तौलीदी तरीका तोसी का एक और इम्पॉर्टेंट और अहम तरीका ट्यूबर का इस्तेमाल है। ट्यूबर क्या है? ये भी तने की ही एक किस्म है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्यूबर्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ पोटैटो। आम तौर पर आम जिंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्यूबर की मिसाल एक आलू है। पोटैटोज है फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम दैट कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू प्लांट। आलू क्या है? ये एक खुराक से भरा हुआ मोटा ज़मीन में दबा हुआ तना है जो कि एक मुकम्मल पौधे में तब्दील होने की सलाहियत रखता है। हैव यू एवर सीन सम स्पॉटिंग पॉइंट ऑन द पोटैटो? क्या आपने कभी किसी आलू के ऊपर छोटे छोटे ऐसे उभार देखे हैं या
नए पौधा बनाने वाले उभार देखे हैं। स्प्राउटिंग पॉइंट्स कहते हैं वो पॉइंट्स जहाँ से एक नया पौधा निकलने की जगह हो। वी कॉल दो स्प्राउट्स आइज ऑफ अ पोटैटो। हम इन स्प्राउट्स को या ये जो पॉइंट्स है जहाँ से एक नया पौधा निकलना है इसको आंखें कहते हैं, किसी भी आलू के ऊपर मौजूद आंखें कहते हैं। एट ईच आई देर इज़ अ बर्ड विच ऑन सोइंग इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। हर एक आलू के ऊपर जितने भी ये बर्ड्स हैं, हर एक बर्ड में ये खसूसियत होती है कि जब आप आलू को दबा दें तो हर बर्ड एक नए पौधे में तब्दील हो सकता है। एक आलू के ऊपर मौजूद ये बर्ड्स या आइज़ ज़मीन में दबाने के बाद एक मुकम्मल पौधे में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। स्टेम की तीसरी कैटेगरी है स्टोलन। स्ट्रॉबेरी प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स येट इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू स्टोलन्स। स्ट्रॉबेरी प्लांट के अंदर, स्ट्रॉबेरी के पौधे के अंदर फूल और बीज बनते हैं, लेकिन फिर भी ये गैर तौलीदी तरीके से भी अपने आप को बढ़ाता है। ये गैर तौलीदी तरीका स्टोलन है। स्टोलन क्या है? स्टोलन्स आर द स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड एज रनर। स्टोलन्स वो तने हैं जो कि ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर अमूदी तौर पर चलते रहें। विद टाइम दीज रनर्स डेवलप रूट्स एंड बर्ड्स विद इंटरवल फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट्स। ये स्टोलन ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर अमूदी चलते हुए आगे जाकर अपनी जड़ें और पत्ते बना लेते हैं और इस तरह एक नया पौधा बन जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स टू गेट द डिज़ायरेबल ट्रेट्स इन प्लांट्स। गैर तौलीदी बढ़ोतरी के तरीके आमतौर पर सनती पैमानों पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पौधों की अपनी मर्ज़ी की खसूसियात वाले पौधे हासिल किए जा सकें। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग आर द कॉमन मेथड यूज फॉर दिस पर्पज़। इस काम के लिए अपनी मर्ज़ी की खसूसियात वाले पौधे हासिल करने के लिए जो गैर तौलीदी तरीक़ा तोसी इस्तेमाल होते हैं उनमें लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग के तरीके ज़्यादा कॉमन है। लेयरिंग के तरीके में किसी भी तने की नरम शाख को लेकर ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। ज़मीन के नीचे दब जाने के बाद इस शाख से नए जड़ें और पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। इस तरीक़ा से मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नए पौधे निकलते हैं और इन पौधों को बाद में इस बड़े पौधे से अलग करके अलग अलग जगहों पर लगा दिया जाता है। इन लेयरिंग और सॉफ्ट ब्रांच ऑफ प्लांट सच एज रास्पबेरी, लेमन, चाइना रोज एक्सेट्रा इज बेंड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद सॉइल। लेयरिंग के तरीके में किसी भी पौधे की नरम शाखों को, जैसे कि रास्पबेरी के पौधे में, लेमन के पौधे में और चाइना रोज़ के पौधे में, शाखों को नीचे झुकाकर ज़मीन के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कवर्ड ब्रांच विल डेवलप रूट्स। वक्त गुजरने के साथ ये जो शाखें ज़मीन के सतह के नीचे दबाई गई थी, इनमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। दिस ब्रांच इज़ देन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट विच देन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ये जो शाख जिससे जड़ें निकली हैं इसको बाद में आबाई पौधे से अलग कर दिया जाता है, जो और फिर ये अलग किया जाने वाला पौधा आगे जाके एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग किसी भी एक पौधे के तने को काट कर किसी दूसरे पौधे के तने के ऊपर लगा दिया जाना और इस तरह इस नए बनने वाले पौधे के अंदर दोनों पौधों की खसूसियात, जिसके तने पर लगाया गया और जिसका तना लिया गया, दोनों की खसूसियात इस नए पौधे में शामिल हो जाएंगी। द ग्राफ्टिंग मेथड इन्वॉल्व द जॉइनिंग ऑफ स्टेम ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट दैट कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट। ग्राफ्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें दो मुख्तलिफ पौधों के तनों को आपस में इस तरह जोड़ा जाता है कि नए बनने वाले पौधे के अंदर दोनों पौधों की खसूसियात मौजूद होती हैं। द प्लांट टू विच द स्टेम द अदर प्लांट इज़ अटैच इज़ कॉल्ड स्टॉक। वो पौधा जिसके ऊपर किसी नए पौधे का तना लगना हो उसको स्टॉक कहते हैं। वाइल द अदर प्लांट इज़ कॉल्ड द स्क्योन और ग्राफ्ट। जबकि जो दूसरा पौधा है जिसका तना किसी पौधे के ऊपर लगना है उसको स्क्योन या ग्राफ्ट कहते हैं। दीज टू स्टेम्स आर देन जॉइंड टुगेदर बाय मेकिंग स्लांटिंग कट्स इन बोथ, fitted together tightly with a piece of cloth and covered with a polythene sheet। ये जो दोनों तने हैं इनको तिरछा काटा जाता है, इनके ऊपर तिरछा कट लगाया जाता है। जिसके ऊपर पौधा लगना है, जिसके ऊपर तना लगना है और जिस तने ने लगना है, दोनों के ऊपर तिरछा कट लगाया जाता है। उसके बाद इन दोनों तनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद इनके ऊपर एक कपड़े को लपेटा जाता है और कपड़े के ऊपर फिर पॉलीथीन की शीट या प्लास्टिक शॉपर लगा दिया जाता है। द ग्रोइंग प्लांट विल हैव मिक्स्ड ट्रेट्स ऑफ बोथ। जो नया बनने वाला पौधा है उसके अंदर दोनों पौधों की खसूसियात होंगी, स्क्योन की यानी ग्राफ्ट की भी और स्टॉक की भी। ग्राफ्टिंग इज़ कॉमनली यूज फॉर प्लांट्स सच एज एप्पल, पीचेस, प्लम्स। आमतौर पर ग्राफ्टिंग का तरीका सेब, आड़ू और आलू बुखारे के पौधों के अंदर आमतौर पर इस्तेमाल होता है। कटिंग किसी भी पौधे के गैर तौलीदी हिस्से को काटकर एक नई जगह लगा देना और उस गैर तौलीदी हिस्से या वेजिटेटिव पार्ट से नए पौधे का बन जाना। इन दिस मेथड एनी वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय कटिंग।
اس طریقہ کار میں کسی بھی پودے کا غیر تولیدی حصے جیسے جڑوں، تنے اور پتے کو آبائی پودے سے الگ کر لیا جاتا ہے، کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے اور اس پودے کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ The separated plant is then placed into the moist soil to grow۔ اس الگ کیے ہوئے غیر تولیدی حصے کو نرم مٹی میں، گیلی مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ پلانٹ لائک دا روز، بٹرفلائی بش، ڈہلیا ایٹسیٹرا کین گرو بائی یوزنگ دس میتھڈ۔ بٹرفلائی بش، ڈہلیا اور گلاب کے پھول جیسے پودوں کو اس طریقہ کے مطابق بڑھایا جا سکتا ہے۔ This method of growing plants are friendly in terms of economy and time۔ پودوں کو بڑھانے کے یہ جو طریقے ہیں یہ دوستانہ ہیں اور آسانی سے کم خرچ ہیں اور جلدی تیار ہونے والے ہیں۔ They are less expensive and plant take much less time than a plant growing from a seed۔ یہ طریقہ کار کم خرچ ہیں اور ایک بیج سے بننے والے پودے کی نسبت یہ پودے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، کم ٹائم میں تیار ہو جاتے ہیں۔ However, the plants that grow through vegetative propagation are small in size and do not live long۔ لیکن پھر بھی جو پودے اس غیر طریقہ تولید سے تیار ہوتے ہیں ان کے قد چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ Moreover, no new varieties are obtained by this method of reproduction۔ ان طریقہ تولیدوں سے غیر تولیدی طریقوں سے بڑھنے والے پودوں کے اندر کوئی نئی خصوصیات پیدا نہیں ہوتی۔ اس طرح نئی ورائٹیاں، نئے خصوصیات رکھنے والے پودے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے۔ But a large number of plants can be reproduced in a short time۔ لیکن ایک تھوڑے وقت میں آپ زیادہ پودے تیار کر سکتے ہیں۔ Due to these reasons, sexual reproduction have advantages over asexual reproduction۔ The individual produce have unique and different characteristics than their parents plant and the plant live longer and grow much taller۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ طریقہ تولید سے پیدا ہونے والے پودوں کے اندر زیادہ بہتری ہوتی ہے غیر طریقہ تولید سے پیدا ہونے والے پودوں کی نسبت۔ کون سی بہترین خصوصیات ہیں؟ جیسے کہ طریقہ تولید سے پیدا ہونے والے پودے، ان کے اندر خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی خصوصیات اپنے آبائی پودوں کی خصوصیات سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ پودے زیادہ لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں اور ان کے قد بھی بڑے ہوتے ہیں۔ A majority of plants reproduce sexually, which is a major reason of their dominance on earth۔ زیادہ تر پودے طریقہ تولید سے اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اسی لیے وہ زمین پر زیادہ موجود ہیں۔ ان کی تعداد دوسرے غیر طریقہ تولید سے بڑھنے والے پودوں کی نسبت زمین پر زیادہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام چیپٹرز کی کمپلیٹ سالو ایکسرسائزز، ایکٹیویٹیز اور نوٹس کے لیے ویب سائٹ www.abdirinfo.com کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کسی بھی کلاس کے سائنس یا بیولوجی کے لیکچرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر کمنٹ باکس میں میسج کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔